Hello students, welcome to my YouTube channel, that is Rajesh Mathematics Solution RMS, and I am Rajesh. Today I am going to discuss about the properties of addition, subtraction, multiplication and division. Okay, let's start the video. So what is the properties? How can we interpret the numbers in the properties of the multiplication, division, addition and subtraction? Okay, let's start the video. आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में आप नंबर को कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे प्रॉपर्टीज को इंटरप्रेट करोगे नंबर को प्रॉपर्टीज में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट वन, here on the blackboard I have written all the properties from addition to division. Okay, चलिए आपको बताऊंगा अभी कि ये क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इज, first property is closure law of addition, closure law of addition. Then second property is commutative property. Okay, first property is closure law, second property is commutative property, and third property is associative property. Okay, here I will written the three properties, but instead of that we have so many properties. Okay, let's further discuss about them. But first we discuss about the three properties of addition, subtraction and SPM. That is addition, subtraction, division and multiplication, or multiplication, division, whatever. Okay. So first property says that, the first property says that a plus b belongs to n. A plus b belongs to n. That means n is the natural number set. N for natural number. N for natural number. Okay, and for natural number, and the natural number starts from 1 to infinity, and the natural number starts from 1 to infinity. Okay, so the statement says that, or the property says that, closure law of addition property says that a plus b belongs to n. Means in natural number in between 1 to infinity you have to take any natural number. You have to take any natural number, and addition of the two numbers gives a natural number. Addition of the two numbers gives a natural number. Here example is 5 plus 3 equals to 8. 5 plus 3 equals to 8. So 8 is a natural number. Okay. Then same property in subtraction. Here a small change in subtraction, because if we interchange the numbers in addition, that is 5 plus 3 or 3 plus 5, the result are same. But here in closure law of subtraction, if we subtract a minus b belongs to n, where it is possible, where it is law is possible, if there is a condition. Okay, there is a condition. If a is greater than b, अगर फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएगा. ठीक है, चलिए. ओके, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट a minus b belongs to n where it is possible if the a is greater than b. means फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से अगर बड़ा होगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएगा. ठीक है, चलिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. 5 minus 3 equals to 2. यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर मींस a बड़ा है और b छोटा है, इसलिए 5 minus 2 equals to 2 आया. ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा. लेकिन जब हम ये करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, तभी क्या आएगा. देखिए 3 minus 5 equals to not equals to 2. 3 minus 5 not equals to 2 because it minus 2, and minus 2 is not in natural number set. Okay, because the natural number starts from 1 to infinity. There is no negative integer. If we write minus 2, that is a negative integer. But here the statement says that it is the natural number and starts from 1 to infinity. There is no negative integer. Okay, no negative sign also. So it is 3 minus 5 equals to minus 2. It is not possible. Okay, clear? Okay, चलिए next multiplication. Here a into
into b belongs to n, अगर कोई भी नंबर और एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, यानी दो नेचुरल नंबर को आप ले लो ना, मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, हियर एग्जांपल 5 into 3 equals to 15। 5 into 3 equals क्या आएगा? 15। तो 15 इज नेचुरल नंबर ना, 15 इज नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट इफ यू इंटरचेंज 3 into 5 they're also the same। 3 into 5 is 15। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए डिवीजन। Here the statement says that a divided by b belongs to n। a divided by b belongs to n। ये कंडीशन भी थोड़ा सब्ट्रैक्शन की तरह है। ठीक है, ये कंडीशन भी कैसा है? सब्ट्रैक्शन की तरह है। देखिए क्या है, a divided by belongs to n when a is greater than b, a is greater than b। ओके, a जब b से बड़ा होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है, क्लियर मींस subtraction says the property or subtraction which property belongs in subtraction, that also property in division, and the property belongs to addition, that property belongs to also multiplication। okay, multiplication means addition का जो प्रॉपर्टी जिसमें आता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी भी उसी में आता है, एंड डिवीजन का प्रॉपर्टी जिसी में आता है, डिवीजन का प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी एक है। ठीक है, दिस इज द combination between addition and multiplication, subtraction, division। okay, the property which is suitable for addition and multiplication, the property is suitable for addition and multiplication that not coming in subtraction and division। जो प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, जो प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आता है, वो प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। ठीक है, अगर आगे जाता है तो वहां पे और एक कंडीशन लगता है, जैसे कि a is greater than b। a मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? और ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट डज इट मीन? इफ वी इंटरचेंज द नंबर्स, अगर हम नंबर को इंटरचेंज कर दे, a की जगह b को लिख दे, b की जगह a को लिख दे, तो क्या आएगा? आंसर वही आएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी आल्सो सैटिस्फाई इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट सैटिस्फाई इन द डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड नॉट satisfying the division and subtraction। okay, subtraction division में ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, जो प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में आता है वो प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं आ सकता। अगर आ भी जाता है तो भी एक कंडीशन लगता है वहां पे। ठीक है, ओके, देखिए द प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी इंटरचेंज द नंबर्स, अगर हम इंटरचेंज कर ले तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। a plus b equals to b plus a, a plus b equals to b plus a, that means 5 plus 3 equals to 3 plus 5, having the same also, having the same। okay, same in multiplication here also, a into b equals to b into a, a into b equals to b into a। okay, that means 5 into 3 equals to 3 into 5, having the same result। 5 into 3 equals to 3 into 5, having the same result। okay, now clear? Addition and multiplication having the same rule, because it follows the same rule and same properties, because the multiplication itself says that I am the repeated addition of a number। okay, कोई भी नंबर को बार-बार ऐड करो, आंसर जो आएगा उसी नंबर को उतनी बार जितनी बार ऐड करते हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मींस 3 times 5, 3 times 5, if the example I have given you 3 times 5, what does it mean? It means 5 plus 5 plus 5, 5 plus 5 plus 5। okay, that means 3 into 5, 5 5 5, तीनों 5 का मिला तो 15 आएगा। ठीक है, 5 into 3 कर दो तो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, देखिए a minus b not equals to b minus a minus b minus a से इक्वल नहीं होगा। अगर भी होगा तो आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू। ये दोनों आंसर देखो यहाँ पे अलग है, ये +2 है और ये -2 है। दैट मींस 5 - 3 +2 आया एंड 3 - 5 -2 आया, जो कि माइनस हमारा नेचुरल नंबर सेट में नहीं है ना, नेचुरल नंबर सेट में। तो फिर ठीक है, चलो डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। देखना है हमें यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो a divided by b not equals to b divided by a. This property says that a divided by b is not equals to b divided by a. Okay, b divided by a. That means यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिया है, a को 15 लिया हूँ, b को 5 लिया हूँ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे a का 15 आया, अच्छा 5 है, तो फिर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। ओके, लेट्स टेक 15 divided by 5 not equals to 5 divided by 15. फिर 15 divided by 5 क्या आएगा, 3 आएगा, बट 5 divided by 15 क्या आएगा, 1/3, जो कि रेशनल नंबर है। दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके, अगर रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q आता है, लेकिन हमारा नेचुरल नंबर क्या आता है, 1 to infinity आता है, जो कि सिंगल ही है। देयर इज नो रेशनल नंबर, देयर इज नो p by q फॉर्म। दैट मींस 3 is not equals to 1/3 because 3 is a whole number भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 1/3 इसका आंसर निकालो तो कितना आएगा, 0.33 समथिंग आएगा, ठीक है। इसलिए 3 is not equals to 1/3 means subtraction and division commutative property is not associated, ये associated नहीं होगा, क्योंकि 3 and 1/3 is not equals to, here also +2 and -2 are not same. Okay, then comes to associative property. What the property says, if a plus b यहाँ पे और एक नंबर जुड़ा जाएगा जो कि c है, ठीक है। a plus b plus c means ये जो तीनों नंबर है ना, a b c, इन दोनों को वारी से अलग अलग करके ब्रैकेट देके हम करेंगे इसको एडिशन, ठीक है। चलो a plus b होल दे दिया मैंने, यहाँ पे होल है, a plus b होल plus c equals to a plus b plus c, ये भी होल में आ गया। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होल में था, सेकंड में क्या आया, सेकंड एंड थर्ड नंबर होल में था, और लास्ट में क्या आया, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर होल में है क्या, a plus c then whole then plus b, आंसर सेम आएगा या नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। देखिए a का मैंने 5 लिया, b का 3 लिया एंड c का 2 लिया, ठीक है। फर्स्ट ये दोनों को ऐड करते हैं, 5 plus 3 कितना आया, 8 आया, 8 plus 2 कितना आएगा, 10, ओके, इक्वल्स टू 5 plus 2 plus 3 का कितना आएगा, 5 आएगा, देन 5 ऐड करो तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। देन 5 plus 2 7 आया, 7 plus 3 10 आएगा। तो ये जो सबकी एडिशन जो अलग-अलग से किए, उसका आंसर क्या आया, सबका इक्वल आया, ओके। देयर इज नो चेंज इन आंसर, मींस इन एडिशन हो या इन मल्टीप्लिकेशन, नंबर को बारी-बारी से ऐड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देयर इज नो चेंज इन आंसर, ओके। देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी सेम है, a into b होल दे दिया मैंने into c, then a into b into c को होल दिया अभी, then a into c इन दोनों को होल लिया, then b को मल्टीप्लाई किया। here also 5 into 3 15 into 2 30, okay। 5 into 2 into 3 23 का 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 आया कितना, 30, then 5 into 2 10 आया, 10 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ क्या आया, 30, आंसर सेम आया आंसर, ओके। नेक्स्ट, अच्छा देखो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, ओके। चलिए चेक करते हैं ये एसोसिएटेड होता है नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए
a माइनस बी को होल लिया मैंने, माइनस सी किया, इज नॉट इक्वल टू, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इक्वल नहीं होगा। अब कोशिश भी कर लो, इक्वल नहीं आएगा। a माइनस सी, b माइनस सी को होल लिया, बाहर उसके बाहर रखा a को, ओके, नॉट इक्वल्स टू a माइनस सी को होल लिया, अभी माइनस b किया। चलिए एग्जांपल में बताता हूं आपको। 5 माइनस 3 आंसर क्या है? 2। 2 माइनस 2 क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। देन नॉट इक्वल्स टू 5 माइनस 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 का क्या आएगा? 3 माइनस 2 1। 5 में से 1 गया तो कितना आएगा? 4। फर्स्ट में 0 आया था, फर्स्ट में क्या आया था? इसका जो था ना, इसमें 0 आया था। 0 नॉट इक्वल टू, इसमें क्या आया? 3 माइनस 2 1 आया, यहाँ पे 4 आया। देन 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नॉट इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। सेम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। चेक कर लो ना, कभी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सब्ट्रैक्शन का पता चला आपको, सब्ट्रैक्शन का। So this property also not associated with the subtraction. चलिए डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, a divided by b मैंने बोल लिया, divided by c is not equals to a divided b divided by c, b divided by c, b divided c को मैंने बोल लिया, not equals to a divided by c not divided by b, a divided by c not divided by b। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने a को 15 लिया, b को 3 लिया, c को 2 लिया। ठीक है, 15 लिया, 3 लिया, 2 लिया, तीनों नंबर। चलिए 15 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 5 आएगा। 5 डिवाइड 2 कितना आएगा? 2.25 आएगा। ठीक है, देन 15 डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 1.5 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 2, देन 15 को तो जानते हैं क्या आएगा। ठीक है, that not equals to 15 divided by 2 divided by 3, इसका भी सेम ये जैसे सब्ट्रैक्शन का था। This property also not associated with the subtraction. This property also not associated with the subtraction and division. Means closure property addition and multiplication में follow होता है। Commutative property also follows in addition and subtraction, addition and multiplication, but not associated with the subtraction and division. If it is associated with the subtraction and division, there is a condition, there is a must condition. Okay, एक कंडीशन होगा जो satisfy होगा, then this property belongs to, जैसे कि हमारा closure property satisfy हुआ। Okay, clear? Okay, चलिए next बढ़ते हैं। Some more properties regarding addition, subtraction, division and multiplication. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सम मोर प्रॉपर्टीज, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ये तीनों प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया अभी, तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट वन, चलिए और डिस्कस करते हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन का, और कौन सा प्रॉपर्टी है, हम कैसे समझेंगे इसे। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा आपको। सो another property is distribution property. Distribution property of addition. Okay, distribution property of addition. So what does it mean? Distribution property over addition, इसका मीनिंग क्या है? Okay, चलिए लॉ की तरफ बढ़ते हैं। This statement says that, or the property says that, if a into whole of b plus c, if a into whole of b plus c, then a into b plus a into c means a into c. Okay, ऐसे का मतलब क्या है? a into c. Okay, if a into b plus c, then a into b plus b into a into c. ओके, ए प्रॉपर्टी है ना, ए है ना प्रॉपर्टी। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ए को लेते हैं 5, बी को लेते हैं 3 और सी को लेते हैं 2। ये सेम आएगा या नहीं, हमें तो यही चेक करना है ना, सेम आएगा या नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 5 into 3
प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। चलिए फर्स्ट क्या करना है हमें, ये जो है ना ब्रैकेट में जो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, यहाँ पे 5 है, 5 इंटू 5 क्या आया 25 रह गया। तो ये चेक करते हैं, 5 इंटू 3 कितना आएगा 15 आएगा, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10 आएगा, देन 15 प्लस 10 क्या आया 25। सेम आया ना, LHS और RHS दोनों सेम आया, ओके। LHS और RHS सेम, क्लियर क्लियर, अभी क्लियर हुआ, क्लियर, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। चलिए क्या होगा, देखिए फर्स्ट जैसे मैं लिखा था वैसे लिख लेता हूं। फर्स्ट था हमारा एडिशन का था, ओके, एक समझाता हूं, ठीक है। एडिशन का था ना, ठीक है। फर्स्ट एडिशन विथ 0, एडिशन विथ 0, 0 के साथ अगर कोई भी नंबर का हम एडिशन करते हैं, 5 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या आएगा 5 आएगा, एंड 0 प्लस 5 क्या आएगा 5 भी आएगा, ठीक है। 5 को जिसके साथ भी ऐड करो नंबर वही आएगा, ठीक है। 5 रिजल्ट इज सेम, 5 भी आएगा, ठीक है। देन ये हो गया एडिशन विथ 0 एंड एडिशन विथ 1, ओके। एडिशन विथ 1, इसमें क्या आएगा एडिशन विथ 1 में, if a number is add with 1, if a number is add with 1, the result is same, the result is after the number, the result is after the number, okay। क्या आएगा, इस नंबर के बाद जो नंबर है ना उसमें एक ऐड करो क्या आएगा, आंसर आफ्टर द नंबर आएगा, क्या आएगा आफ्टर द नंबर आएगा, ठीक है, ओके। सो yeah, if we add 0 in any number, if we add 0 in any number, the result is same as the number, the result is same as the number, same आएगा नंबर, ओके। सो क्या होगा, सेम आएगा नंबर, therefore 0 is called, noted, नोट कर लेना, ठीक है। नोट है ये 0 is called, 0 को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, 0 is called additive identity of the number, 0 is called additive identity of the number, okay। 0 is called additive identity of the number, नंबर का ये क्या आ गया additive identity आ गया, ठीक है। 0 is called the additive identity of the number, if 0 is subtracted from any number, 0 is subtracted from any number, then the result is same as the number, 0 is subtracted from a number, the result is same as the number, same as the number, okay। If 0 is subtracted from any number, the result is same as the number. If any number is subtracted from 0, if any number is subtracted from 0, the result is negative of the number, the result is negative of the number, okay। If 0 is subtracted from any number, the result is same as the number. If any number is subtracted from 0, number is subtracted from 0, okay, the result is negative of that number, okay, clear। Then multiply क्या होगा, multiply with this, sorry, subtract, sorry, ये क्या होगा, subtract with 1, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल, चलिए एग्जांपल लिखकर समझाता हूं आपको, ठीक है। 5 minus 1 equals to 4, 5 minus 1 equals to 4, तो ये क्या आया, इस नंबर का before नंबर आया। If 1 is subtracted from any number, if 1 is subtracted from any number, the result is the before of the number, the result is before of the number. If any number is subtracted from 1, the result also same, the result is also same, the before number of that number, but with a negative sign, okay, negative sign, याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन से कर लेना, ठीक है। सेकंड मल्टीप्लाई विथ 0, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई विथ 0 करना है। If any number is multiplied with 0, एग्जांपल ले लेता हूँ, if any number is multiplied with 0, रिजल्ट क्या आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। एंड any number is multiplied with 0 or 0 is multiplied with any number, the results are same, the results are same, okay। Then multiply with 1, multiply with 1, मल्टीप्लाई करना है आपको 1 के साथ, ठीक है। तो कैसा 1 एक केस हो, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं आपको, if any number is multiplied with 1, if any number is multiplied with 1, the result is same as the number, the result is same as the number, okay। if 1 is multiplied with any number, the result also same, the result is also same as the number, okay। clear clear, ओके चलिए डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ओके मैं ये हटा देता हूँ, ये एग्जांपल हटा देता हूँ। ये हटा देते हैं, ठीक है। कंप्लीटली नाउ डिवीजन, कंप्लीटली नाउ डिवीजन। ये कैसे डिवाइड बाय 0, यहाँ पे कैसा है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे होगा ये, चलो मैं बताऊंगा आपको ये कैसे होगा, ठीक है। इफ एनी नंबर, अगर 5 को मैंने डिवाइड किया 0 से, ठीक है, 5 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो 0 का तो टेबल नहीं है, 0 का तो कौन सा टेबल ही नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 किस नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, 0 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा, ठीक है। अगर मैंने 0 के साथ कोई भी नंबर को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। if 0 is divided by any number, their answer is 0. if any number is divided by 0, then the answer is infinitive, then the answer is infinitive आएगा। क्या आएगा, infinitive आएगा, ठीक है। clear clear, इन दोनों में confusion नहीं होना है, ठीक है। if 0 is divided by any number, the result is 0, and if any number is divided by 0, the result is infinitive, the result is infinitive, okay। चलिए डिवीजन का हो गया। अच्छा एक रह गया डिवीजन, डिवाइडेड बाय 1, ये कैसे होगा, डिवाइड बाय 1, ये कैसे होगा, चलिए मैं बताता हूं आपको। डिवाइड बाय 1, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, कोई भी नंबर आप डिवाइड कर लो 1 के साथ, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम इज द नंबर, सेम इज द नंबर, क्या आएगा, सेम इज द नंबर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक कंडीशन है, अगर 1 is divided by any number, if 1 is divided by any number, that is the reciprocal form of the number, that is the reciprocal form of the number, और हमें ये भी बोल सकते हैं इसको, it is the multiplicative inverse of that number, okay। so if you have a doubt on that, what does it mean, what does multiplicative inverse, okay, mean एक ना कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो क्या करोगे, 1 by that number, 1 divided by that number लिख दो, और कुछ भी नहीं करना है, 1 divided by that number, ठीक है। और we can say that the reciprocal form, we can say that the reciprocal form of that number, reciprocal form of that number क्या आएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म आएगा, और क्या आएगा, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं,
It is also called multiplicative inverse. Okay, okay, clear? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, आई हैव रिटन दैट एडिटिव आइडेंटिटी व्हाट इज दैट। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी नंबर को आप जीरो के साथ ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। या जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो तो आंसर वही आएगा। ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। इफ जीरो इज एडेड विद एनी नंबर द रिजल्ट इज सेम, और any number is added with zero, that is the result also same. This is called the additive identity. Okay, और एक एग्जांपल लेते हैं। 16 plus 0 equals to 16 and 0 plus 16 equals to also 16. ये होता है additive identity. Then additive inverse क्या है? ठीक है, if the question is given, write down the additive identity, additive inverse. Write down the additive inverse. Question ऐसे दिया है, inverse of 5. अगर 5 का additive inverse पूछा गया तो आपको क्या करना है, कुछ में पूरा सिंपल है, आसान है ये, बस 5 के आगे माइनस का साइन लगा के लिख दो, हो गया additive inverse, हो गया additive inverse. ओके, अगर ये रेशनल नंबर में भी पूछा गया हो जैसे कि 1/5 का क्या होगा, आपको सिर्फ एक माइनस का साइन लगा देना, वही नंबर को डाल देना है और कुछ नहीं करना है, बस सही। 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -1/5 क्या आएगा, -1/5। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर माइनस का कुछ दिया होगा तो जैसे कि -18 का दिया होगा, इसका क्या करोगे, इसका फंडा क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, अगर प्लस हो तो माइनस लगाना है, अगर माइनस का क्वेश्चन दिया गया है तो क्या करना है, प्लस लिखना है, बस हो गया। ये होता है एडिटिव इनवर्स और कुछ नहीं, ये होता है एडिटिव इनवर्स, बस माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस डाल दो, हो गया आंसर। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम टू द लास्ट। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे ठीक वैसे ही क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 का, क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 5 लिखना है, यहाँ आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 divided by 5. Okay, then अगर question is given like this, 16 का आपको करना है, ठीक है, 16 का करना है, कैसे करोगे, सही 1/16 लिख दो, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अगर 1/18 का दिया गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर 1/18 का आपको दिया गया हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या लिखोगे, 18 लिख दो, हो गया, बस। अगर नेचुरल नंबर में दिया गया तो रेशनल नंबर में डालना है आपको, अगर रेशनल नंबर में पूछा गया तो नेचुरल नंबर में डालना, ठीक है, अगर रेशनल नेचुरल, नेचुरल टू रेशनल। ओके, ये इंटरचेंज करना है बस, और कुछ नहीं, ये इंटरचेंज कर दो बस, हो गया, हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। ओके, आज का प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताया, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड अबाउट दैट। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।